the Shahid Vijay Singh Pathik Sports Complex here in Greater Noida. Euro Gladiators versus the Trans Titans. Match number 6. And both these teams certainly have a lot of quality, lot of star power as well. Wow, so nice to see some movement in the air, off the surface, slip in place, and all of a sudden the conditions look completely different, Vivek. Wow! That's huge! And what a way to get off the mark and just respond to that delivery. Just a bit of a stare once again. Both the brothers are enjoying a friendly banter, but that shot certainly had a lot of class in it as well. जी हाँ, अच्छे शब्द का आपने इस्तेमाल किया, रिस्पॉन्ड, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं ना तब आप समझदारी से थोड़ा सा अपने आप को समय देके और फिर उसके बाद आप वो शॉट खेलते हैं. That's high up in the air, and I reckon that will also clear the ropes with consummate ease. He's a daring batter, is Raghav Dhawan, and he took upon the challenge, gave the stride, and he's hammered this over the bowler's head for another maximum. What a shot! दो आवाजें आई थी, अगर दो आवाजें नहीं आई तो फिर नहीं बच सकते थे कि बिल्कुल सामने ही खड़े थे, स्टंप्स के सामने, और बहुत बड़ी विकेट है ये. चलो जी, भाइयों की लड़ाई में जीत जो है छोटे भाई को मिली है. Revenge is a dish best served cold. Rishi has the last laugh, gets his brother and the send-off as well. Wow, these visuals certainly make for something when the two brothers sit and talk. Raghav has to depart for 15 and 12 Gladiators. बेहतरीन शॉट, लाजवाब टाइमिंग है ये. इसे कहते हैं बल्ले का पूरा चेहरा दिखाना. Driven. That's powerfully struck once again. The fielders didn't have to move. The ball crashes into the boundary cushions. एक बहुत ही क्वालिटी शॉट आर्म जैब किया, जिस प्रकार से जैसे ही गेंद को देखा कि थोड़ा धीमा आया है, थोड़ा सा छोटा है, एक बहुत ही लाजवाब शॉट था. बहुत अच्छा प्लेसमेंट किया, जानते थे कि कौन सा फील्डर कहां मौजूद है. And he's just bowled him. That's a wonderful delivery by Rishi Dhawan. Bowling stumps to stumps, asking the batters if they want to take the risk, take it. And bullseye. Rishi Dhawan strikes. 5 ओवर जो है वो समाप्त हुए हैं 36 के स्कोर पे. दूसरा विकेट जो है वो अर्जित किया है, बट किस प्रकार से विकेट चटका है, बिल्कुल खेलने चले गए थे सीधा. Missed the straight one. Trying to play towards mid wicket. And Rishi Dhawan had the last laugh, and the captain leading from the front. इस बार फिर से ऑन द राइज खेलने का प्रयास है. लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया, बहुत अच्छा पिक किया था और बहुत अच्छा एलिवेट कराया शॉट को. परफेक्ट टाइमिंग और प्लेसमेंट. This is a high quality stroke for many reasons. Number one, it was against the turn. Number two, it was playing on the up. So now, do we play the stroke against the turn? This occasion slightly shorter. And Pawnikar, the form he's been in, he's looking at the gaps pretty easily and finding it very easily as well. फुल टॉस गेंद, सिर्फ दिशा दिखाई है, दो फील्डर्स देखते रह जाएंगे और गेंद बगल से निकल जाएगी. जाना पड़ेगा वापस. ऋषि धवन सामने खेला हुआ स्ट्रोक और कैमरामैन से कहा कि आप फोकस कीजिए. 6 रन और. Is my trip 91st maximum. This is clean hitting personified. With minimum effort, maximum result. And wow, he's targeted the green in the gazebo. And खराब शुरुआत धनराज शर्मा द्वारा, लेकिन फायदा यहां पे ऋषि को मिला है. कुछ इसी रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, जिस रफ्तार से गेंद निकल रही है इस समय बाउंड्री की तरफ. कलाइयों की ताकत, दर्शनीय स्ट्रोक. इज माई ट्रिप. 92 छक्के लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में. picked up and posted. Signs of aggression. Has he found the fielder? Oh, it's been put down. Another drop, and it's the same man, Mansoori.
That's going to happen when you drop catches. You'll pay for it as well. Towering hit towards long on, and both these batters have decided time has come to go on a leather hunt. जी हाँ, भाग्य आपके साथ है, कैचेस पकड़ नहीं रहे, तो फिर बीच में एक आध गेंद तो इस तरह की मिलेगी आपको। बहुत बढ़िया शॉट खेला ये, बिल्कुल सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से। What a shot! Wow! He's drilled that over long gone. And from both sides, both these batters are just going after the bowling. कभी कभी ये दिक्कत आती है जब आपके पास बहुत गेंदबाजी के विकल्प होते हैं ना, तो एक कप्तान के तौर पे आप सभी को मौका देना चाहते हैं। वो मौका देने के चक्कर में कहीं मैच हाथ से ना फिसल जाए, इसीलिए जल्द से जल्द आप अपने एक तेज गेंदबाज को वापस लेकर आइए। बहुत ही लाजवाब शॉट है ये। सेट हो जाता है जब बल्लेबाज ना इस पिच के ऊपर, फिर इस तरह के शॉट खेलने में कोई उसको परेशानी नहीं आती। Fuller this time down the ground, firmly struck. What a shot! He's mixing carnage with class in the middle. Gaurav Dhiman for you. एक बार फिर से ऊपर की तरफ डालने गए और मेहनत कश पारी अर्धशतक पूरा करते हुए गौरव धीमन अपना मुश्किल परिस्थितियों में आए थे और लाजवाब अर्धशतक बनाया है। और फिर से शॉट ऑफ द लेंथ बॉल है, पुल जरूर लगाया है पर संपर्क कितना अच्छा है ये देखना पड़ेगा। दो फील्डर्स के बीच में से निकल जाएगा। ये अच्छा शॉट है, ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत सारी जगह मिली थी और बहुत अच्छा संपर्क के साथ पहुंचा दिया जाएगा गेंद को बाहर। टिक टेबल थे, पहला गेंद भी यही डाला था, ये गेंद भी यही डाला। ऑफ स्टंप के बाहर धीमा गति का, पर समय बहुत मिला बल्लेबाज को। This is like a tennis forehand. Picked up the slow ball pretty early, just set up nicely. और अब समझ में आ रहा था कि पिछला अगर छोटा डाला है तो अगला गेंद थोड़ा ऊपर डालेंगे। खिलवाड़ कर रहे हैं वो भावनाओं के साथ अब गेंदबाज की। आदिल रशीद डाउन द ग्राउंड जाते हुए, एक्सटेंशन ऑफ आर्म बहुत लाजवाब है। अर्धशतकीय ये जो पारी है ये मिसाल पेश कर रही है बाकी खिलाड़ियों के लिए भी कि किस तरह से आप अंडर प्रेशर एक ऐसी पारी खेल जाते हैं जो बहुत मुकाबलों तक आपको और आपके खिलाड़ियों को, साथियों को याद रहेगी। स्पिनर्स हो, मीडियम पेसर्स हो, अब ये जो कारवा आगे बढ़ चुका है, ये कारवा रुकेगा नहीं, ये कारवा बस बढ़ता चला जाएगा। पिछली बार फुल लेंथ बॉल था तब डाउन द ग्राउंड गए थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, इस बार शॉर्ट ऑफ द लेंथ को जल्दी पिक करके डीप इन विकेट के ऊपर से दर्शनीय 6 रन। ये फुल टॉस है, ये बैट जो है हाथ में घूमा है, एक ही हाथ से ये बल्ले पे शॉट लगा था और परविंदर अवाना ने ये ओवर अच्छी तरह समाप्त जरूर किया है। गौरव धीमान का यहाँ पे विकेट चटकाया है, 5वां विकेट जो है वो शतकीय साझेदारी के बाद गिरा है। 115 रन जोड़े इन दोनों बल्लेबाजों ने और उसके बाद ये फुल टॉस गेंद पे गौरव धीमान का विकेट। ओहो, ये शॉट नहीं, ये संदेश है, ये खिलाड़ी विशेष है। सिर्फ गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी करना भी इन्हें बहुत पसंद है। अनुरीत Brings up this 106 in the Intercontinental Legends Championship. When you have the fine leg in the circle, that's not the line or the length to bowl in the last over. एक और बार, इस बार फुल लेंथ था, अभी तक शॉर्ट बॉल का इंतजार कर रहे थे बट अनुरीत ये नाम अब खास बनता चला जा रहा है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस बार अभी मानसिक दबाव पूरा गेंदबाज पर होगा। 197 लग चुके हैं और 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। ये लेजेंड में है बहुत दम, एक और बार क्या लगा दिया है मैक्सिमम, बिल्कुल बार ये 200 का आंकड़ा भी छू दिया है। अनुरीत के लिए जो है ये आंकड़े बहुत खास बनने जा रहे हैं। विश्वसनीय, मजेदार, शानदार, धुआंधार, धमाकेदार, अद्भुत। Exhibition of sixes by the Gladiators. 3 in 3 for Anuj Singh. ये अच्छी गेंद है, ये आपने तेज गति से डाला और रूम खुद बनाने चले गए थे अनुरीत। अगर सही जगह खड़े खड़े खेलते तो फिर वो जो सूर्या भाऊ वाला शॉट खेला था इस ओवर की दूसरी गेंद पे, वैसा शॉट आ सकता था। बट अनुरीत ने 5 गेंदों में 22, 440 की स्ट्राइक रेट से वो ग्लैडिएटर्स को 200 पार पहुंचा दिया है। 20 ओवर के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जो यूरो ग्लैडिएटर्स का फैसला था कि हम टॉस भी जीतेंगे, पहले बल्लेबाजी भी करेंगे, तो 203 अच्छे लगाए हैं। खुश होगी टीम। अब ये जनाब पे ही नजर रहेगी जेसी राइडर।
just over the fielder at mid-off, and for a moment even Jesse Ryder thought he had found the fielder, and that smile says it all. That's a trademark Jesse Ryder shot. We've seen him in his heydays play that with consummate ease. He's only rolled back the years with another monstrous six. What a hit. बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये इनकी ताकत थी और इसी शॉट के लिए ये जाने जाते थे, इनकी पहचान थी, ये जो वो पिकअप शॉट होता है इनका। बाहरी किनारा, ओहो, सब कहीं और देखते रह गए, गेंद कहीं और चली गई। This one's high up in the air, fielder position for the catch, and it's taken. One too many here for Ryder. This time he only gets height and no distance. And Ryder's cameo comes to an end. Abu Nechim strikes, and a very good catch in the deep. पहली गेंद पे जो छक्का लगा था और इस गेंद में सिर्फ लाइन का अंतर था, रफ्तार वही थी, लेकिन इस बार आप अगर देखें तो लाइन जो थी ना वो थोड़ी सी और स्टंप्स की तरफ थी। पहली गेंद उन्होंने उनके लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर रखी थी। Lovely punch off the back foot. Wow, so much of assurance in that punch of his. Pratik Athavale is making a statement in the middle. And he's cleared the ropes with ease. For a moment it looked like he had mistimed it, but he's certainly got plenty of willow on this one. And Athavale has been sent out with a plan and he's executing it very well at the moment. जल्दी पढ़ ली उन्होंने, ये धीमी गति की गेंद थी। इनिशियल मूवमेंट थोड़ा पीछे को ही आते हैं, धीमी गति की गेंद थी और जैसे ही उन्होंने पढ़ा, मन बना लिया कि ये शॉट खेलना है। He swung it so hard that it's out of here into the cow corner region. Flat and maximum. Rishi Dhawan is taking charge in the middle. ये देखिए, इतना सपाट ये पिच है, खड़े खड़े शॉट खेल रहा है। और अगर आप घबरा जाएंगे, आपा खो जाएंगे, तो फिर अगली गेंद डालने के लिए हिम्मत कहां से बटोर पाएंगे। तो दिलेरी दिखानी बहुत जरूरी है ऐसी पिचों पे, एक गेंदबाज के तौर पे। लेकिन ये कहां रुकने वाले हैं, ये तो ठान के आए हैं कि हर गेंदबाज की खबर लेंगे। 6 रन और अठावले के बल्ले से इज माई ट्रिप। 106 छक्के लग चुके हैं और टाइटंस के भी 50 रन पूरे हो चुके हैं। Beautiful shot. Picked up the length early. Not much batters in this competition will do this one with Singh. Athavale, he accepts the invitation. थोड़ा सा आगे निकले, फुल टॉस बनाया और आंखों को लुभाने वाला ये ड्राइव। 4 रन और। लेकिन यहां सुपर शॉट कहेंगे ऋषि धवन के बल्ले से। इज माई ट्रिप 6 लगाया है ऋषि धवन ने और बता दिया है कि ये भी इसी मोड में बल्लेबाजी करेंगे। A poor delivery by Kamran Khan. First ball of his spell down the leg side, half volley. Rishi Dhawan helping its away. Fine leg in the circle, becomes a free hit. गेंद हवा में, क्या ये चांस बनेगा या गेंद निकल जाएगी? भनक भी नहीं लगी फील्डर को। चौके के साथ पावर प्ले की समाप्ति। वक्त वक्त का बात का खेल है, ये वक्त वक्त की बात है। ये लीजिए, आप क्या कह रहे थे और लीजिए शुरू हो गया। बस थोड़ा सा सब्र दिखाने की जरूरत थी। आ गया फिर वो बड़ा हिट जिसके बारे में बात हो रही थी। अथावले, जब तक ये लगे रहेंगे तब तक उम्मीद बंधी रहेगी। 108 sixes is my trip maximum this. Right from the middle of the bat, and he picked his spot as well. And this is one of the reasons they want to be here. Excitement galore. Athavale on the cusp of a very well made half century here with this wonderful shot. Lots of room on the leg side. A half century to save for Athavale, and one that keeps the team in the run chase. ये तो तोहफा मिल गया। हम सिंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ रेशी ने एक तोहफा दिया पिनल शाह को और उन्होंने कहा मुझे तोहफा कबूल है। Free swing of the bat, and long on's not even in the picture. अच्छे लंबे कद काठी के हैं आप, उसके बाद इतनी ज्यादा फ्लाइट करने की क्या जरूरत है।
तेज आ रही है ना, फ्लाइट तो वैसे ही हो रही है आपके कद की वजह से। और एक बार फिर से ये बहुत ही अच्छा शॉट है, दो खिलाड़ियों के बीच से अच्छा प्लेसमेंट और 4 रन मिलते हुए। एडिटर इस समय पे ज्यादा पीछे थे, सिर्फ 101 लगे थे। क्या एक रन आउट का मौका बनेगा? क्या वो जो है विकेटों पर जाकर गेंद लगी है? क्या तब तक बल्लेबाज पहुंच गए थे या नहीं? स्क्वायर लेग एम्पायर क्या इंटरेस्टेड हैं या नहीं? बल्लेबाज थोड़े से अचंभित नजर आ रहे हैं। डायरेक्ट हिट का प्रयास था पॉइंट की दिशा से, हिट जरूर बहुत शानदार, और बल्लेबाज जो हैं क्या परेशानी में हैं किस तरह से, देख लीजिए। देखिए ऐसे पॉइंट की दिशा में बॉल गई, डायरेक्ट हिट का प्रयास। राघव वहां पे क्या फील्डर मौजूद है, बहुत अच्छा हिट और बिल्कुल चारों खाने चित हुए। फ्रेम अवे थे वहां पर बल्लेबाज। ये पहले अच्छे बल्लेबाजी करके फिर एक बहुत अच्छे फील्डर की काबिलियत आपने दर्शाई है। इस बार डाउन द ग्राउंड गए, गेंद की लाइन तक पहुंचे थे, लेंथ तक पहुंचे थे, पिक किया था सही समय पर। अब वो खतरे के जो बादल हैं वो किसकी ओर मंडराएंगे? क्या एक कैच का मौका बनेगा? बिल्कुल बाल बाल ऊपर से निकला ये फील्डर। वैसे कामरान थे और कामरान के ऊपर से भी वो लाजवाब ईज माय ट्रिप टूर्नामेंट सक्सेस को और बढ़ा देंगे। लाजवाब संपर्क बल्ले का। जी हाँ, टोटल 113 छक्के इस टूर्नामेंट में अब तक लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखे इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेली और यहाँ पे लंबाई थोड़ा कम पड़ गई। Penal Shah, what an innings under pressure. 47 or 29. And more. Getting to his half century in superb style. Shah has chosen an area where you can't put a fielder. He made sure that he was eyeing up straight, and possibly when you miss the Yorker, as a spinner especially. Penal Shah's presence is key. And he's somehow reached that ball to send it for 4. Throws the bat at it. Man in the deep will not be. Oh well, he's taken it easily. I thought he was overrunning for a bit inside and then realized he's going to stay put. He's taken the catch, and that means the momentum's going to shift. 23 of 11, and the best form of a dot ball is the one that produces a wicket. Loose delivery picks up a wicket. Abu Najim cannot believe his luck. That was a good shot, only at the elevation, but not the distance or the power by Naman. He's gone for 11. Titans 181 for 4. Starts with a biggie. Only height, no distance. Lot of ground to cover. And Anureet Singh has completed an unbelievable take. Watch out for the celebration. And with this wicket that has left Avana and co gaping. Wasn't a slow ball. It just sat up in the pitch. Abu Najim trying to hit the deck hard and take above Anureet Singh. It's very special when a fast bowler does that. And the celebration comes out. He plays his heart out, bowled well, played a cameo with the bat. This could be a catching opportunity. Why not, says the fielder underneath. This is the big wicket they were looking for. And suddenly, the Gladiators clawed themselves back into the game within a span of 3 balls in an over. Now, last nail of the coffin, probably. Slow ball attempted, beautifully bowled back of the length. Praveen Gupta takes the dolly. That's struck hard. The man in the deep is a spectator. A 6 couldn't have been timed better metaphorically as well. 14 required in the last over, 190 for 6. Sood strikes well, out of the screws and out of here. Superb sixer, and suddenly it's 6 or 3 required. And Sood has asked the world, what is the fuss about? Just a flick of the wrist. Not much follow through. Straight, and that helps. Will be 4. Scores a level. Talk about absorbing pressure. He's a sponge, Mansoori. 1 ball, 1 required. Swing and a miss, and a direct hit is missed. It's missed at the other end as well. It will go for 4, but the win has come by. The Titans hang till the end and produce a victory. Despite a missed shot towards the end, it required 2 throws to not hit 2 sets of stumps. And there it is. What a game of cricket.